Good morning, everyone. Welcome back again in our next topic. As in the last class, we were discussing about accounting, introduction of accounting, in which we had completed the topics. The first one was need for accounting, the second one was meaning of accounting, and the next one was features of accounting. After that, we had discussed bookkeeping, accounting, and accountancy. After that, types of accounting. So today, in the same chapter, with the next topic, we are here, and our new topic is users of accounting. Okay, so when in the last class we had discussed that what is accounting. So as I told you in the last class, that accounting is needed by the various persons who are directly or indirectly related to the business. So in the same manner, the topic is users of accounting. Means that accounting is useful for those kind of persons which are directly or indirectly related to the business. So in which the first one is internal users. As the name suggests, internal. Internal means which are internally related with the business. Like owner. Owner wants the accounting information to know the profit or loss of the business. And the financial position. Financial position states the assets and liabilities. So these are the informations which is required by the owner. The second one is management. Management is also the internal user which is directly related to the business. Why management required this kind of accounting information? Because management wants to know the suitability of the organization, that what is the profit or loss earned by the business or what is the financial position, so that management can take decision. मैनेजमेंट क्या ले सकता है, उस पर डिसीजन ले सकता है, फ्यूचर की प्लानिंग कर सकता है. सो दीज आर द इंफॉर्मेशंस which are needed by the internal users. So internal users comprises of owners and management. After that, external users. So who are the external users? External users are those users which are not directly related with the business, जो डे टू डे एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं होते हैं, बट वो भी बिजनेस के यूजर्स होते हैं. कैसे? फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स. अब क्रेडिटर्स रेगुलर बेसिस पे बिजनेस से जुड़े हुए नहीं होते हैं, बट दे गिव्स गुड्स ऑन क्रेडिट टू द बिजनेस. वो बिजनेस को गुड्स उधार में देते हैं. तो वो क्या जानना चाहते हैं? दे वांट टू नो दैट व्हाट इज द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस अमाउंट पे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा. दीज आर द एक्सटर्नल यूजर्स. लाइक लेंडर्स. लेंडर्स प्रोवाइड्स लोन टू द बिजनेस. क्या प्रोवाइड करते हैं? वो लोन प्रोवाइड करते हैं. तो किस बेस पे वो लोन प्रोवाइड करेंगे बिजनेस को? टू सी दैट बिजनेस इज इन अ पोजिशन टू पे ऑल द लोन्स टू द लेंडर्स, कि क्या वो सारा का सारा लोन अमाउंट है वो पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. सो दीज आर द इंफॉर्मेशंस रिक्वायर्ड बाय द एक्सटर्नल यूजर्स. देयर आर मैनी मोर एक्सटर्नल यूजर्स like government, like debtors, like employees. So accounting informations are needed by these users for their different uses. Okay, so these were the users of accounting, in which internal, which are internally related with the business, external, which are externally related with the business. After user of accounting, the next topic we will discuss, that is objectives of accounting. Objectives of accounting. In objective of accounting, first topic we will discuss the main and important objective to calculate profit or loss. The main and important objective of accounting is to find out profit or loss during an accounting year. ठीक है, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है. द सेकेंड वन इज to know about
Financial position. Financial position means property of the business, liabilities of the business. All these informations are to be known by the accounting in a systematic manner. The third one is to remove frauds. अकाउंटिंग क्या हेल्प करती है फ्रॉड्स को रिमूव करने में, बिकॉज व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजेक्शंस इन ए सिस्टमैटिक मैनर, सो देयर इज ए लेस चांसेस टू मेकिंग फ्रॉड इन अकाउंटिंग. अकाउंटिंग में फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि हम हर एक ट्रांजेक्शन को सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करते हैं. देन आफ्टर, टू नो ट्रू and fair view of the business. Accounting helps us to know the true and fair view of the business. Means जो business में actual situations, actual transactions हुए हैं, उन transactions के बारे में हमें मालूम चलता है और उसके बेस पे हमें जो भी decisions लेने होते हैं, जो भी planning करनी होती है, वो सब हम कर सकते हैं. सो दीज वर द मेन एंड इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. देयर आर मैनी मोर ऑब्जेक्टिव्स ऑल्सो, बट अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दीज आर द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स. एंड आफ्टर दैट, इस टॉपिक के बाद में जो हम डिस्कशन करेंगे, दैट इज और लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग. लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग. अभी तक हमने अकाउंटिंग के केवल और केवल फ़ायदे पढ़े हैं कि क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती है जिसके अंदर हमेशा अच्छाइयाँ ही मिलें. कुछ ना कुछ बुराइयाँ भी होती हैं उसमें. तो अब हम इस टॉपिक के थ्रू पढ़ने वाले हैं व्हाट आर द वेरियस लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग की क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं. द फर्स्ट वन इज़ influenced by personal judgment. Influenced by personal judgment. What is this? It means there are different view of different accountant. Means that in the different kind of business there are different kind of accountant. In some point of view we can differentiate accounting according to their methods. हम उनको अलग अलग कर सकते हैं. Suppose that there is a topic depreciation. In depreciation there are two methods. The first one is straight line method and the second one is WDV method. Straight line method tells that हर साल हमें जो depreciation लगाना है वो original value पे लगाना है. Second method, return down value method, says that we have to charge depreciation on the balance amount of each year. हर साल जो हमारे पास बैलेंस बचता है एसेट्स का, उस पे हमें डेप्रिसिएशन लगाना है. जब दोनों मेथड की हम बात करेंगे तो दोनों मेथड से डेप्रिसिएशन का अमाउंट अलग अलग आता है. लेकिन कुछ बिजनेस SLM मेथड यूज़ करते हैं, कुछ बिजनेस WDV मेथड यूज़ करते हैं. When two different methods are to be followed by the business, so it's very complicated to compare between those the business. उन बिजनेस के बारे में हमें यदि कंपैरिजन करना है तो हम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज फॉर मेकिंग कंपैरिजन ईच एंड एवरीथिंग मस्ट बी सेम. जब तक चीज़ें सेम नहीं होंगी, मेथड सेम नहीं होंगे, तब तक हम उसके बीच में कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे. That's why there is a limitation of accounting कि influenced by personal thinking, personal judgment, means that accountant की जो judgment होता है, thinking होती है, उसके बेस पे accounting influence हो सकती है. मतलब उनमें comparison नहीं किया जा सकता. The second point is affected by window dressing. Affected by window dressing. It means some manipulations are to be made in accounting to show the better position of the books. यदि हमें
हमारे बिजनेस की पोजीशन अच्छी दिखानी है तो कई जगह हमें क्या करना पड़ता है, मैनिपुलेशंस करना पड़ता है। इन द सेम मैनर एक नॉर्मल एग्जांपल मैं आपको दूं कि यदि हम घर में भी जिस तरीके से रोज़ रहते हैं वैसे यदि गेस्ट आने वाले हों तो हम क्या कर देते हैं, मैनिपुलेशंस कर देते हैं कि गेस्ट आने वाले हैं तो हम क्यों ना घर को साफ़ सुथरा बना दें, अच्छा बना दें, और उनके जाने के बाद वापस सेम सिचुएशन। तो वही अकाउंटिंग में होता है। अकाउंटिंग में क्या करते हैं हम, कुछ चीज़ों को अच्छा दिखाने के लिए ताकि लोग उससे अट्रैक्ट हों, जो यूज़र्स हैं अकाउंटिंग के वो उससे अट्रैक्ट हों, तो हम कुछ मैनिपुलेशंस कर देते हैं, कुछ चेंजेस कर देते हैं। जैसे हमें यदि टैक्सेस बचाने हैं तो टैक्सेस बचाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे जो एक्सपेंसेस है उनको ज़्यादा करेंगे और प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा, और प्रॉफिट कम होगा तो हमें टैक्सेस कम देने पड़ेंगे। सो देयर आर मैनी सिचुएशंस इन विच अ बिजनेसमैन कैन मैनिपुलेट द अकाउंटिंग इन सच ए मैनर कि उसे कोई भी पता नहीं कर सकता। सो इट्स ऑल्सो अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग कि हम अकाउंटिंग के अंदर कुछ हद तक मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। द थर्ड पॉइंट इज ignorance of qualitative informations. Ignorance of qualitative information, it means in accounting only those informations are to be recorded which are quantitative in nature, means that which can be measured in terms of money, जो कि हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था। तो अकाउंटिंग में केवल कौन सी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती हैं, जो केवल मॉनेटरी टर्म में होती हैं, जो केवल मनी टर्म में होती हैं, जिनको हम मेज़र कर सकते हैं। बट देयर आर सो मैनी अदर इंफॉर्मेशन विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी बट which are very important to the business. How? The example is the situations of strike. Suppose that strike हो जाती है, strike होने से अपना बिजनेस बंद होता है, बिजनेस बंद होने से लॉस तो हुआ है हमें। Suppose that हमारा बिजनेस बंद हो गया 5 days के लिए, तो 5 days के लिए हमें लॉस तो हुआ है, बट वी कांट कैलकुलेट दैट लॉस। हम उस लॉस को पता नहीं कर सकते हैं कि हमें कितना लॉस हुआ है। दैट इज़ द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग में हम केवल उन्हीं इंफॉर्मेशंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं जिन्हें हम मॉनेटरी टर्म में मेज़र कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशंस जो मनी टर्म में मेज़र नहीं होती हैं लेकिन फिर भी उनका इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस पे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि वो मॉनेटरी टर्म में नहीं होती हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज unsuitable for forecasting. Unsuitable for forecasting. What it means? With the help of accounting, we can know that what will be the estimated figure in the future, but we can't calculate the exact figure of the future. जैसे लास्ट ईयर हमें 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो क्या ये पॉसिबल है कि इस साल भी हमें एग्जैक्ट 5 लाख का प्रॉफिट होगा? नो, इट्स नॉट कन्फर्म। एक एस्टिमेशन हम कर सकते हैं कि लास्ट ईयर 5 लाख का प्रॉफिट हुआ तो इस साल भी अराउंड 5 लाख के आसपास प्रॉफिट होगा, बट एग्जैक्टली अकाउंटिंग की हेल्प से हम ये नहीं बता सकते कि हमें इतने रुपए का ही प्रॉफिट होगा। सो अकाउंटिंग इज़ नॉट सुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। फ्यूचर की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन के लिए अकाउंटिंग सुटेबल नहीं होती है, हम केवल अकाउंटिंग के बेस पे एक एस्टिमेशन कर सकते हैं। सो दीज वर द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। मैनी टाइम्स इन दीज लिमिटेशंस इंडिविजुअल पॉइंट इज टू बी आस्क्ड कि आपको बताना है अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, एक्सप्लेन कीजिए इसको कि ये पॉइंट क्या बताना चाह रहा है हमें। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक of this chapter. Okay, so after limitation of accounting, next point, next topic we will discuss, that is qualitative features of accounting. Next is qualitative features of accounting. तो क्वालिटेटिव फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहला हम पढ़ेंगे रिलायबिलिटी।
reliability. So qualitative feature tells us that what kind of qualities should be there while making the accounting. अकाउंटिंग करते समय क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए अकाउंटिंग के अंदर, सो दैट जो भी अकाउंटिंग के यूज़र्स होते हैं वो उससे बेनिफिट ले सकें. तो रिलायबिलिटी मीन्स टू ट्रस्ट, मीन्स दैट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी ट्रस्टफुल, जिन पे हम क्या कर सकते हैं, इजीली ट्रस्ट कर सकते हैं. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फेक नहीं होनी चाहिए. दीज आर द क्वालिटी ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, बट नो वन फॉलोज दैट. कोई भी फॉलो नहीं करता है. ये क्वालिटी बताई गई है कि अकाउंटिंग में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, बट इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन दैट कौन इन चीज़ों को फॉलो करता है. तो रिलायबिलिटी मीन्स टू ट्रस्ट. अकाउंटिंग मस्ट बी इन सच ए मैनर दैट ईच एंड एवरी यूजर ऑफ अकाउंटिंग कैन ईजिली ट्रस्ट ऑन दैट. उस पर क्या कर सके, ट्रस्ट कर सके. द नेक्स्ट वन इज रेलेवेंस. नेक्स्ट इज रेलेवेंस. Relevance tells us that only relevant informations of the business must be recorded in the accounting. Accounting में केवल और केवल बिजनेस की relevant information ही रिकॉर्ड होनी चाहिए. Those informations which are not relevant to the business will not be recorded. वो उसके अंदर रिकॉर्ड नहीं होंगी. इस चीज़ का ध्यान रखा जाना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे स्ट्राइक हो गई. अब स्ट्राइक होने से बिजनेस को लॉस तो हुआ है और हम उसको मेजर भी नहीं कर सकते, तो वो इन्फॉर्मेशन अब हमारे कोई काम की नहीं है. दैट इन्फॉर्मेशन इज इररेलेवेंट. चाहे हमें उससे लॉस हुआ है, बट वी कैन नॉट रिकॉर्ड दैट इन्फॉर्मेशन इन टू द बिजनेस. दैट्स वाई इट इज इररेलेवेंट टू द बिजनेस. ओके, द नेक्स्ट वन इज अंडरस्टैंडेबिलिटी. Understandability. Understandability means that accounting information must be in such a simple manner so that each and every user of accounting can easily understand those information. उन information को easily समझ सके. यदि हमारी accounting की information एक simple तरीके से लिखी हुई होंगी, तो जो अकाउंटिंग का बेसिक नॉलेज भी रखता है वो भी उन इंफॉर्मेशंस को आसानी से समझ सकता है. तो अकाउंटिंग की जो इंफॉर्मेशन है वो इस तरीके से रिकॉर्ड की जानी चाहिए ताकि बिजनेस के जितने भी यूज़र्स हैं उन इंफॉर्मेशन को इजीली समझ सकें और उसके बेस पे कुछ डिसीजन ले सकें. सो क्वालिटेटिव फीचर्स में हमने पढ़ा रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, फिर faithful presentation. Faithful presentation. It means all the informations of accounting must be followed by the specific rule. जो भी प्रिंसिपल्स लगते हैं इसके पीछे, उन प्रिंसिपल्स का प्रॉपरली यूज़ किया जाना चाहिए. जब तक इंफॉर्मेशंस का प्रॉपरली यूज़ नहीं किया जाएगा तब तक वो हमारे लिए फेथफुल नहीं होंगी. मीन्स दैट हमने आज गुड्स परचेज किया, तो उस परचेज के लिए हमारे पास फेथफुल रिकॉर्ड होना चाहिए, हमारे पास उसका बिल होना चाहिए. यदि हमसे कोई पूछे कि ये आपने जो गुड्स परचेज किया इसका बिल कहाँ है, तो यदि आपके पास उसका प्रूफ होगा, उसका बिल होगा, इट मीन्स दैट इंफॉर्मेशन इज फेथफुल प्रेजेंटेशन, और उससे जो प्रॉफिट लॉस निकाला गया है वो भी सही तरीके से निकाला गया है. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वालिटेटिव फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग. सो द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर दैट इज रोल ऑफ अकाउंटिंग. रोल ऑफ अकाउंटिंग. रोल ऑफ अकाउंटिंग के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि अकाउंटिंग का मेनली कहाँ कहाँ रोल है, किस किस जगह अकाउंटिंग काम में आती है, किस किस तरीके से अकाउंटिंग काम में आती है. तो द फर्स्ट रोल ऑफ अकाउंटिंग इज रोल ऑफ एन लैंग्वेज. रोल ऑफ अ लैंग्वेज. सो अकाउंटिंग इज हेल्पफुल because it is in language of the business.
अकाउंटिंग क्या है? बिजनेस की लैंग्वेज है। यदि किसी को बिजनेस को समझना है तो उसे उसकी अकाउंटिंग को समझना पड़ेगा। जैसे देयर आर सो मैनी अदर लैंग्वेजेस, तो उन लैंग्वेज को समझने के लिए हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। वैसे ही अकाउंटिंग को समझने के लिए, बिजनेस को समझने के लिए हमें अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए। सो अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको एक वर्ड बोला एसेट्स, तो एसेट्स के नाम से ही आपके समझ में आ जाना चाहिए इट इज़ अ टर्म ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस की जो प्रॉपर्टी है उसको रिप्रेजेंट करती है एसेट्स। तो अकाउंटिंग प्ले द रोल ऑफ अ लैंग्वेज, एक लैंग्वेज का रोल प्ले करती है जिसके अंदर काफ़ी टर्म्स आती हैं जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि व्हाट आर द वेरियस अकाउंटिंग टर्म्स, बेसिक टर्म्स। द सेकेंड वन इज रोल ऑफ डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। अकाउंटिंग क्या हेल्प करती है हमारी? टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस। जो भी हमारे प्रॉफिट्स हैं उनको फाइंड आउट करने में, यदि हमने कोई लॉस उठाया है बिजनेस में तो उसके लिए भी अकाउंटिंग हमारी हेल्प करती है कि बिजनेस से हमें जिस भी तरीके से पूरे साल भर में प्रॉफिट हुआ है तो अकाउंटिंग हमें उसकी इन्फॉर्मेशन देगी, और यदि हमारे बिजनेस की इन्फॉर्मेशन से हमें लॉस अराइज हुआ है तो अकाउंटिंग हमें लॉस की इन्फॉर्मेशन देगी। तो अकाउंटिंग ऑल्सो प्ले टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। द नेक्स्ट वन इज रोल ऑफ determining financial position. Accounting also helps us to determining the financial position of the business. It means the assets, property of the business, or what is the liability or amount payable to the outsiders. So these shows the financial position of the business. तो अकाउंटिंग की हेल्प से हमें मालूम पड़ता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारी प्रॉपर्टी कितनी है एट द एंड ऑफ द ईयर, और हमें कितना अमाउंट लोगों को पे करना है। सो दीज टॉपिक्स आर ऑल अबाउट द रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन विच वी हैव डिस्कस्ड टुडे। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, इन विच इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग जिसमें हमें प्रॉफिट के बारे में, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है। द थर्ड वन इज लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, तो लिमिटेशंस मतलब अकाउंटिंग की क्या क्या कमियां हैं ये हमने देखा। द नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव फीचर्स, अकाउंटिंग में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। देन आफ्टर रोल ऑफ अकाउंटिंग। सो इसी के साथ हमने हमारा ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट चैप्टर हाफ पार्ट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और जो रिमेनिंग पार्ट था वो हमने आज कंप्लीट कर लिया। तो होप यू विल ऑल अंडरस्टूड दिस टॉपिक्स। आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे और आप इनको रेगुलरली पढ़ेंगे तो आपके जो भी अकाउंटिंग से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, डाउट्स हैं, वो सब क्लियर होंगे। इसके अलावा भी यदि आपकी कोई डाउट्स हों तो आप प्लीज़ पर्सनली आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टुडेज़ क्लास एंड विल मीट with the next chapter, that is basic accounting terms. Thank you very much.